So, introduction to statistics. Intro. By one definition, a statistic consists of facts and figures such as the average annual snowfall in Denver or Derek Jeter's lifetime battling average. Okay. So these statistics are usually informative and time saving because they condense large quantities of information into a few simple figures. Like a researcher is doing a study on emotional intelligence and self esteem in Indian adolescents, both girls and boys. So, to do this, the researcher will collect data using standard tools that measure emotional intelligence and self esteem. So, there are two things. First is emotional intelligence and self esteem. So, are the main variable of this study. जब जो रिसर्चर है जब वो डेटा कलेक्ट कर लेगा, वंस द रिसर्चर कलेक्ट द डेटा, तो नेक्स्ट स्टेप है उसका स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करना. फिर उसके गोल्स के अकॉर्डिंग, ठीक है, और उसका क्वेश्चन ऑफ द रिसर्च, जो रिसर्चर है विल यूज डिफरेंट स्टैटिस्टिकल मेथड, जिनमें से हमारे दो हैं, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक एंड इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक. डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक की बात करें, सो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक आर यूज्ड टू समराइज द डेटा. डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में हम डेटा को समराइज करते हैं. फॉर एग्जांपल, स्कोर्स का मीन निकालना, फिर स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना. रिजल्ट को शो करने के लिए उसे ग्राफ या चार्ट्स बनाना. अभी सेकंड नंबर है इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक. सो ये जो होता है ये हमें हेल्प करता है, रिसर्चर को हेल्प करता है. दीज हेल्प, मतलब इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक हेल्प द रिसर्चर टू कंपेयर इमोशनल इंटेलिजेंस एंड सेल्फ स्टीम बिटवीन बॉयज़ एंड गर्ल. सेकेंड इज, ये जो होता है वो स्टडी करता है रिलेशनशिप बिटवीन इमोशनल इंटेलिजेंस एंड सेल्फ, मतलब दो वेरिएबल के बीच, एंड टेस्ट if differences found in the data are statistically important. Then आता है why do we use statistic in psychology. हम statistic का यूज़ साइकोलॉजी में क्यों करते हैं? So as you can see in the example, जो स्टैटिस्टिक होती है वो साइकोलॉजिस्ट को हेल्प करती है डेटा को ऑर्गेनाइज करने में और समझने में. टू ऑर्गेनाइज एंड अंडरस्टैंड डेटा, make conclusion based on the data, and support or reject their research ideas, means hypothesis. So this unit is very important as it introduces the meaning of a statistic, the importance of a statistic in psychological research, key concept like scales of measurement, descriptive statistics, inferential statistics. अब अगर यहाँ पे हम स्टैटिस्टिक के डेफिनेशन की बात करें, सो द टर्म स्टैटिस्टिक रेफर्स टू अ सेट ऑफ मैथमेटिकल प्रोसीजर फॉर ऑर्गेनाइजिंग, समराइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग इंफॉर्मेशन. और वी कैन से स्टैटिस्टिक इज द डिसिप्लिन दैट कंसर्न्स द कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन and presentation of data. अब इसमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी हैं, जैसे कि पॉपुलेशन, सैम्पल, पैरामीटर, स्टैटिस्टिक एंड वेरिएबल. सब पॉपुलेशन की अगर हम बात करें, A population
is the set of all the individual of interest in particular study. पॉपुलेशन मतलब बहुत सारे लोग, रिसर्च हो रही है उसमें अगर हम बहुत सारे लोग लेंगे और उन पर वो करेंगे रिसर्च, तो वो होता है हमारा पॉपुलेशन. लाइक दिस टर्म, जो पॉपुलेशन टर्म है, इट रेफर्स टू द पर्सन, ऑब्जेक्ट, एलिमेंट, एनिमल और रिएक्शन दैट शो अ यूनिक पैटर्न ऑफ कैरेक्टरिस्टिक. इट इज़ द एंटायर ग्रुप that the researcher wants to study. Okay, the entire group. For example, if a researcher wants to study adolescent in New Delhi, so the population will be the all the adolescent. So a population can be finite. For example, number of students in a school who failed in maths, or infinite. For example, number of stars in the sky. Then हमारा आता है sample. So a sample is a group of individual who actually participate in the research. Okay, sample वो होता है जो असली में उस रिसर्च में पार्टिसिपेट्स करते हैं. So continuing the above example, it is not possible to collect data from all adolescents in New Delhi. So the researcher will select a sample from that population. So sample is thus a smaller group from population. Okay. और ये भी ज़रूरी है कि like it is important that the sample is representative, meaning it should have similar characteristics as the population. एंड इसके बाद है हमारा पैरामीटर. इसकी बात करें सो अ पैरामीटर वो वैल्यू है जो हमें इंफॉर्मेशन देती है पॉपुलेशन के बारे में, जो कि हम रिसर्च में स्टडी करने वाले हैं. ठीक है. सो इट इज़ डिस्क्राइब्ड एज अ मेजर ऑफ द पॉपुलेशन एंड रेफर्स टू द इंडाइसेस ऑफ अ सेंट्रल वैल्यू, dispersion, correlation and so on of all the individual of the population. However, it is not always easy to find an exact parameter. In most cases, a parameter is estimated using a statistic. Then हमारा था statistic. So just like a parameter, ठीक है, जो कि पॉपुलेशन के उसमें यूज होता है. पैरामीटर जो है वो स्टैटिस्टिक के लिए. तो जस्ट लाइक अ पैरामीटर मेजर, जैसे कि पैरामीटर मेजर करता है पॉपुलेशन के एक्सपेक्ट को, वैसे ही स्टैटिस्टिक मेजर करता है सैम्पल के एक्सपेक्ट को. सो द सिंबल यूज्ड फॉर मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएशन आर डिफरेंट फॉर पैरामीटर एंड स्टैटिस्टिक. Last, variables. Okay, so it's not last. Another important term in statistics is variable. So a variable means something that varies. Okay, जो कि हम डिस्क्राइब करते हैं एज अ क्वालिटी और नंबर दैट चेंज और हैज़ डिफरेंट वैल्यूज. जैसे कि इमोशनल इंटेलिजेंस कैन बी हाई और लो. Self-esteem can also be vary from person to person. Even gender is a variable as it varies between male and female. अब हम आगे पढ़ेंगे लाइक आगे क्या है, टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स. 7 है इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट, एक्सट्रेनियस, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, कॉन्टिन्यूस एंड डिसकॉन्टिन्यूस.